So very good morning, dear students. Today we also discussed about the few numericals which is based on composite beam. So which is as follows. So first, just reading the statement of the numerical, which is this is a numerical for a composite beam. In the last class we have discussed one numerical with a different approach. Today we are going to be solved this problem with a different approach. So try to be minutely observe the what happening here, so you will be able to solve the numerical. So dear student, the statement is like this: a flinged beam consists of two timber joists 150 wide and 350 deep, with a steel plate 250 deep and 15 thick, fixed symmetrically between the timber joist. Calculate the moment of resistance of the flinch beam if allowable stress and timber is 7 Newton per square, and also a relation given ES, Young modulus of steel, equal to 20 Young modulus of timber. So this diagram is given in the questions. So dear student, you can see this diagram. It is a symmetric diagram about x-axis. So you can see if you draw an axis from here, it's become a symmetric diagram. So now, first our objective here to find out the moment of resistance. Moment of resistance means M. ये जिसको आप moment of bending moment बोलते हो, this M. It is also called a moment of resistance. So last class we have got a relation between the stress in steel and strain in timber when the steel having some length in shorten length. जब उसमें कुछ छोटी लेंथ थी तो वी हैव गॉट अ रिलेशन. सो वो एक अलग अप्रोच थी. टुडे वी आर गोइंग टू बी सॉल्व विथ अ डिफरेंट अप्रोच to solve by this numerical. So we know that if you draw a axis from here, so it will be a neutral axis. यहाँ पर एक neutral axis हो जाएगी. So we know that the maximum stress 7 Newton per square. Here the 7 Newton per square will be at 350 upon 2, say at 175 from the neutral axis. So let's try to understand, dear student. Here, if you draw a neutral axis here in just between here, so from distance from 175 from neutral to the top of this timber, there will be a maximum stress which is given in the constants. In that is allowable stress is 7 Newton per square. So maximum will be here. This is the maximum will be in this position. So the moment of resistance of timber joist, we know the relation M is equal to sigma into Z. We have drawn this relation in the last class. So that is M is equal to sigma into Z. Why 2 is coming? Because we have two pieces of timber joist. We have two pieces of timber. That's why 2 symbol 2 is 2 यहाँ पर आ गया. ये देखो ये वाला 2 because of we have two timber. So that's why this 2 came here. So dear student, then sigma max 2 into sigma max into Z. Z we already know is the ratio of I upon Y max. And what is the Y max? It is 175 for the timber. Why 175? Just half of 350. That is 175. You can use this relation. Either you can directly use, dear student, you can use this one also. कोई problem नहीं होगी. Sigma max is equal to BD square by 6.
आप इसको भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो यूज किए हैं यहाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने क्या निकाल लिया इसमें से, ये रिलेशन यूज करके we have calculated the moment of resistance. We have put all the relative bits. Sigma max is equal to 7 Newton per mm square, and we know the I for timber. So this for I for this one, how much? This D is depth. So 150 upon into 350 cube by 12, and upon this y, and this y is this is called 175, half of this. So after solving this one, this term, it is obtained 42.875 into 10 raised power 6 Newton mm. So now it's convert into the 42.875 kilo Newton meter. You just, so this वाला, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हट जाएगा, क्योंकि आपने एक को किलो में एब्जॉर्ब कर लिया और 10⁻³ को और 10⁻³ को mm का मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये दिस टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म उसमें से हट जाएगा. सो नेक्स्ट मूव अहेड, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम. आइए, देन स्ट्रेस इन टिम्बर. अब समझो थोड़ा सा कल वाला फंडा. दिस इज द स्ट्रेस बेंडिंग, ये जो निकला अपना बेंडिंग मोमेंट, ये कितने पर है? ये यहाँ पर इस पोजीशन पे, ठीक है. अब आते हैं थोड़ा आगे चलते हैं. और स्ट्रेस इन टिम्बर, जो मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है टिम्बर में, यहाँ पर होगी, दैट इज 7 न्यूटन पर mm², ये वाला, ठीक है. सो अब हमको पता है कि यहाँ पर तो 7 न्यूटन mm² है. देन आगे देखते हैं. So stress in timber at 125 mm from the neutral axis, which is Y max for the steel, which is the Y max for the steel. So आपको पता है 175 न्यूट्रल एक्सिस से 175 mm पे कितना था? 7 था. तो 125 mm पर कितना होगा? दैट वही फॉर्मूला लगा दो. तो 120 D by capital D, or you can say 125 upon 175 into 7. So that will be 5 Newton per mm. The stress at the distance 175 from the neutral axis in the wood timber में कितना होगा? That is 5 Newton per mm². Then which will be 5 Newton per mm in the wood. Then maximum stress in steel. Then maximum stress in the steel, how much it is? So we have a ratio. आप देखो यहाँ आते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं. ये आगे चलेगा. This question, we have the m here. M is equal to how much? M is equal to कितना है? 20. M is what? M is the modular ratio. That is called the young modulus of stronger beam upon the young modulus of weaker. ठीक है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं M, modular ratio. Modular ratio is very useful in this chapter. So we have got the stress at 175 mm in the wood. So what will be in steel? स्टील में कितना होगा? ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन नहीं है. स्ट्रेन बराबर होती थी पर स्ट्रेस विल बी डिफरेंट. तो आपके पास देखो ये वाला रिलेशन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं अपन. तुमको ये देखो, वी नो दैट सिग्मा ऑफ स्टील इक्वल टू, क्या पढ़ा था आपने? M इंटू सिग्मा ऑफ वुड या टिम्बर. वही फॉर्मूला लगाया है. ये देख लो, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू 50. ये क्या है? M. 5 क्या है? उसी डिस्टेंस पे 5 इज दिस 5 न्यूटन पर mm². सो वी हैव ऑब्टेन 100 न्यूटन पर mm². सर बट 50 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को 250 मिलेगा ना सर. उसमें तो 100 ही लिखा है.
गलत वैल्यू लिखी सर 20 आता वहां हाँ तो 125 रुको 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 क्या गड़बड़ हो गया लेट्स 50 की जगह पे 20 आया था 120 20 is this and we have that 5 125 is ठीक है then इसको सॉल्व करो this is a 5 okay great okay 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 good oh sorry this is a 20 yaar this is a 20 sorry it's my mistake this must be a not 50 वो होगा 20 होगा 1 सेकंड चलो अपन देख लेते हैं ये 20 होगा 50 नहीं होगा ओके ठीक है ना so this will be a 100 Newton per mm square the moment of resistance in steel plate simply जो आपको जो रिलेशन पहले से पता है ms सिग्मा इंटू जेड अब आप इसकी वैल्यू रख लीजिए डायरेक्ट जेड की वैल्यू BD स्क्वायर बाई 6 भी रख सकते हैं और ये जो हमने इसमें फॉलो किया है ये भी करके सो हमको मिला स्टील मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन स्टील दैट इज 15.625 किलो न्यूटन मीटर ठीक है जैसे मिला देन क्या करेंगे हम उनको ऐड कर देंगे सो वी विल बी गेट द total moment of resistance in the given section will be 58.5 kilo Newton meter 58.5 kilo Newton meter that is same procedure जो हमने इसके लिए डेरिवेशन किया था हमने पहले स्टील का निकाल लिया फिर टिम्बर का निकाल लिया जस्ट उसको लास्ट में जोड़ दिया बिकॉज वी हैव 2 सेट ऑफ टिम्बर तो हमने वहां पर पहले से ही 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था आपको याद हो तो ये देखो यहाँ पर पहले से 2 का मल्टी अगर यहाँ 2 का नहीं करते आप तो आपको यहाँ फॉर्मूले में जोड़ना पड़ता है 2mw दोनों एक ही चीज है पहले कर दिया तो यहाँ नहीं करना है वहां नहीं किया तो यहाँ 2 यहाँ लिखते ms प्लस 2mw और आप यू विल गेट द सेम रिलेशन same value so let's move to the next problem this is a different approach to solve such numerical now let's see a numerical of which we need to be solved by a different approach चलिए इसको पढ़ता हूँ so a beam consists of a wooden joist so this is a 12 centimeter wide and 20 centimeter deep strengthened by a steel plate 1 centimeter thick and 18 centimeter deep one on either side of joist if the stresses in wood and steel are not exceed here the sigma value is given maximum value which is not exceed to that given value whatever is given in wood for wood 8 mega newton per meter square and for the steel 128 mega newton per square find the moment of resistance of beam से फिर moment of resistance we have to find means m को m निकालना है that m of the section then take the modulus of elasticity of steel equal to 20 times of wood that means sigma s es is equal to 20 EW इसका मतलब ये हुआ so इसको सॉल्व करने के लिए अब ये एक अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होगी देखिए इसमें वुडन सेक्शन बीच में है और बाहर है स्टील सेक्शन so अब इसको भी हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए एक और अप्रोच है जो मेरे को यहाँ आपके साथ डिस्कस करनी है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज देयर दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलर रेशियो इस कंपोजिट बीम में इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल सो अब देखते हैं उसका दूसरा रोल यहाँ क्या है सो अब हम क्या करने वाले हैं हम उसको पुरानी अप्रोच से नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये नहीं बोल रहा हूँ बट अब दूसरी से बताना मेरा फर्ज है अब हम क्या करेंगे ये जो बीच में वुड है एडवांटेज क्या है इसमें एक ये वुड है तो हम क्या करेंगे वुड की स्ट्रेंथ स्टील से कम होती है तो इस वुड को एक
इक्विवेलेंट स्टील में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट स्टील कन्वर्ट करेंगे। सो क्या करेंगे, द थिकनेस ऑफ स्टील इक्विवेलेंट टू द वुड। ये जो वुड है, तो हमारे पास वुड का ये वाला जो डायमेंशन है, ये नहीं, क्योंकि इधर तो वो सिमेट्रिक है, इसी एक्सिस के अबाउट तो हमको कैलकुलेशन करना है, तो हम इस साइड छेड़छाड़ी नहीं करेंगे उसको। हम जो करेंगे यहाँ करेंगे, क्या करने वाले हैं, द थिकनेस ऑफ स्टील इक्विवेलेंट टू वुड। अब ये जो 120 इसकी विड्थ है, इसको हम डिवाइड कर देंगे m से। ये जो मॉड्यूलर रेशियो है ना, वीक को वीक जो है उसको स्ट्रॉन्ग में जब कन्वर्ट करोगे तो उसमें आप इससे डिवाइड कर दोगे m से। ये एक इसका याद करने का तरीका होता है। कोई भी लेंथ और विड्थ ऑफ वीकर बीम को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए m से, ठीक है, 1 m से। सो वही हमने किया है, 120 mm जो इसकी विड्थ थी उसको डिवाइड किया 1/m, तो ये 6 mm बन गया, 6 mm। सो नाउ दिस 120 बिकम 6 mm। देखते हैं, नया डायग्राम भी है उधर। सो इट्स बिकम लाइक दिस। अब वी कैन अज्यूम दैट द होल दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्टील। एक पूरा स्ट्रक्चर स्टील का हो गया, ये हमने कर दिया। सो जिसमें से पहले से इनके डायमेंशन दिए थे, ये 6 mm का हो गया, एंड अदर डेप्थ डायमेंशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, अब इस टोटल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। इस टोटल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे आई। हम निकाल सकते हैं, पहले सीखा है फर्स्ट ईयर में, अगर कोई भी एक ही मटेरियल का सेक्शन है तो वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमको किसके उसमें निकालना है, किसका निकालना है, अबाउट द IXX, ठीक है। तो देखिए सिंपल निकालिए, आपके पास पता है ना क्या होता है, ये भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो पहले हम बीच वाले की अगर बात करें, एक है तो वो क्या हो जाएगा, दिस 6, कैसे करेंगे, 6 इंटू दिस डायमेंशन, ये वाली कितनी है इसके लिए 200 mm, तो 6 इंटू 200 क्यूब अपॉन 12 प्लस y2, बिकॉज ये 2 हैं, ये वाले 2 हैं, ये एक सेम लेंथ एंड विड्थ। सो 2 इंटू 10 इंटू 180 क्यूब बाय 12, इसको हमने सॉल्व किया। सो वी गॉट 13.72 इंटू 10⁻6 न्यूटन की पावर 4। So dear student, we have right now the value of moment of inertia of the whole section। तो हमारे पास I आ गया। अब मेरे पास सिग्मा गिवन है, मैक्सिमम सिग्मा इज गिवन। सो अब ये पूरा सेक्शन हमने बना लिया, इसका स्टील का मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। सो नाउ अब हमको निकालना है द गिवन मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इन दिस स्टील सेक्शन कितनी है, 128 मेगा न्यूटन स्क्वायर मीटर, और आप उसको लिख सकते हो 128 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि आपने शुरू से पढ़ते आए हो। सो अब हम निकालेंगे मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस m। वी हैव द फॉर्मूला m, व्हाट फॉर्मूला वी हैव, सिग्मा s अपॉन into I upon ys, ठीक है। I is the moment of inertia of the whole section and this is the strength or maximum allowable strength of steel is sigma, and y हम पता है मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, इसका मैक्सिमम y हमको we have to be taken। सो चलिए आइए हम इसको देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। सो वी हैव दिस वैल्यू 128, देखिए दिया था क्वेश्चन में, फॉर द स्टील इज 128। आई आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, ये अभी निकाला था, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ निकाला था। एंड अब हमको निकालना है द मैक्सिमम, व्हाट दैट
y की वैल्यू फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। y की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से आप कैसे हाउ वी कैन फाइंड आउट y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया? y फॉर द स्टील, इस देखो ये इट इज वी हैव एज्यूम दिस इज ए वुड, दिस इज ए स्टील, बट स्टील इज दिस वन, ठीक है। सो हमने यहाँ वाई एस इस वाले सेक्शन के लिए हमने क्या करोगे, हमको कैसे मिलेगा वाई एस स्टील का कैसे मिलेगा? हाउ कैन वी कैन एज्यूम द मैक्सिम द डिस्टेंस ऑफ फिलामेंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा? चलो ठीक है, तो देखिए वाई एस कितना है यहाँ दोनों के लिए हमको, यहाँ पर इसका मैक्सिमम कितना है 100, ये देख लो आप, ये देखो वाई एस मैक्सिमम 100, यहाँ लिखा है 150, इट मस्ट बी 100, ये गलत है, इट मस्ट बी 100। सो ये हमने सॉल्व किया तो हमको ये यहाँ पर m की वैल्यू निकल गई जब हमने लिखा सिग्मा s इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब हमको लिखना उड की लेनी है, उड के लिए 8 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर इज दिस, देन हाउ मच m विल बी, क्या होगा? आपको पहले से देखो कुछ नहीं हुआ है, ये रिलेशन नहीं याद होगा, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, आपको पहले से पता है सिग्मा एस इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा w, तो आपको क्या चाहिए सिग्मा w, ये क्या हो जाएगा सिग्मा w क्या हो जाएगा? इधर कैसे करोगे, ये सिग्मा w आपको फाइंड आउट करना है, तो आप लिख सकते हो इधर इसकी वैल्यू इज 1/m हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा w हियर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1/m, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सिग्मा m, देखिए जरा इसमें m w y w i अपॉन 120 ये 1/a ये m इधर आया है, ये हो गया 1/1/20 एंड सिंपली आप इन सब की वैल्यू रख दीजिए, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी रख दी आपने 100, ये 100 की वुडन सेक्शन मैक्सिमम लेंथ 100 m आपको निकालना है यहाँ से, आई आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है 1/20, तो m की वैल्यू जो यहाँ आई दैट इज 21.95 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो इनमें से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो हम डिजाइन कर रहे हैं बीम स्ट्रक्चर, इनमें से जो कम होगा दोनों में से, दोनों वैल्यू में से जो m कम होगा, एक m इधर आया और एक m इधर आया, वो हमारा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट दिस वन इज लेस देन दिस, सो हमको ये एक्सेप्टेबल है, कौन सा 19.51 10⁻⁶, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट है जिसके कारण बीम फेल हो सकती है, तो हम कम वाला के लिए डिजाइन करेंगे ना जिससे कि वो फेल ना हो। So moment of resistance, the answer is 19.51 into 10⁻⁶, that इसका जो है ये इधर है। तो एक तरीका ये है, इसको इस तरह के जो प्रॉब्लम आएंगे जिसमें आपको दोनों का मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा एस और सिग्मा ऑफ स्टील एंड सिग्मा ऑफ वुड गिवन होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, तो यू हैव टू बी क्रॉस चेक इट, दोनों की अलग अलग वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा, उसमें से जो कम होगा वो उसका फाइनल आंसर होगा। सो ये एक इसकी, ये वाली एक इसकी अप्रोच है। सो